भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 4। निवृत्ततर्षैरुपगीयमानात् भव औषधाचोत्र मनोभिरामात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुघ्नान्। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। Glorification of the Supreme Personality of Godhead is performed in the Parampara system. That is, it is conveyed from the spiritual master to disciple. Such glorification is released by those no longer interested in the false, temporary glorification of this cosmic manifestation. Descriptions of the Lord are the right medicine for the conditioned soul undergoing repeated birth and death. Therefore, who will cease hearing such glorification of the Lord except a butcher or one who is killing his own self? तो कल हमने इसका आधा परपट लिया था, तो आज हम उसके बाद के तात्पर्य को देखेंगे। In the minds of those who are too attached to sense enjoyment, the material opulence, who are bewildered by such thing, the resolute determination for devotional service to the Supreme Personality of Godhead does not take place. Shri Narottam Das Thakur says, Manushya janam paiya Radha Krishna na bhajiya janiya suniya visikhainu. Anyone who is not in Krishna consciousness and who therefore does not engage in the service of the Lord is also Pashugna, for he is willingly drinking poison. Such a person cannot be interested in Krishna Katha because he still has a desire for material sense gratification. He is not Nivritta Trishna. As it is said, Trair Vargikas te Purusha Vimukha Hari Medhasa. Those interested in Trivarga, that is, in Dharma, Artha, Kam and Moksha, Dharma, Artha and Kama, are religious for the sake of achieving a material position with which to gain better facilities for sense gratification. Such persons are killing themselves by willingly keeping themselves in the cycle of birth and death. They cannot be interested in Krishna consciousness. For Krishna Katha, topics about Krishna consciousness, there must be a speaker and a hearer, both of whom can be interested in Krishna consciousness if they are no longer interested in material topics. One can actually see how this attitude automatically develops in persons who are Krishna conscious. Although the devotees of Krishna consciousness movement are quite young men, they no longer read materialistic newspaper, magazines and so on, for they are no longer interested in such topics. Nivritta Tarshayit. They completely give up the bodily understanding of life. For topics concerning Uttama Shloka, the Supreme Personality of Godhead, spiritual master speaks and the disciple hears with attention. Unless both of them are free from material desires, they cannot be interested in topics of Krishna consciousness. The spiritual master and disciple do not need to understand anything more than Krishna, because simply by understanding Krishna and talking about Krishna, one becomes a perfectly learned person. Yasmin vigyate sarvam evam vigyatam bhavati. The Lord sits within everyone's heart, and by the gaze of the Lord, the devotees receives instructions directly from Lord himself, who says in Bhagavad Gita, Sarvasya chaham hridisanna vishto
मत्तः स्मृतिर्ज्ञानपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविद एव चाहम्. I am seated in everyone's heart, and from me comes remembrance, knowledge, and forgetfulness. By all the Vedas I am to be known. Indeed, I am the compiler of Vedanta, and I am the knower of the Vedas. Krishna consciousness is so exalted that one who is perfectly situated in Krishna consciousness under the direction of the spiritual master is fully satisfied by reading Krishna Katha as found in Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, and similar Vedic literatures. Since merely talking about Krishna is so pleasing, we can simply imagine how pleasing it is to render service to Krishna. When discussions on Krishna Katha take place between a liberated spiritual master and his disciple, others also sometimes take advantage of hearing such topics and also benefit. These topics are the medicines to stop the repetition of birth and death. The cycle of repeated birth and death, by which one takes on different bodies again and again, is called bhava or bhava roga. If anyone willingly or unwillingly hears Krishna Katha, his bhava roga, the disease of birth and death, will certainly stop. Therefore, Krishna Katha is called bhava aushadha, the remedy to stop the repetition of birth and death. Karmis or persons attached to material sense enjoyment generally cannot give up the material desires. But Krishna Katha is such a potent medicine that if one is induced to hear Krishna Kirtan, he will certainly be freed from this disease. A practical example is Dhruva Maharaj, who at the end of his tapasya was fully satisfied. When the Lord wanted to give Dhruva a benediction, Dhruva refused it. Swami Kirtathosmi Varam Nayache. My dear Lord, he said, I am fully satisfied. I do not ask for any benediction for material sense gratification. We actually see that young boys and girls in Krishna consciousness movement have given up their long practice of bad habits like illicit sex, meat eating, intoxication, and gambling, because Krishna consciousness is so potent that it gives them full satisfaction. They are no longer interested in material sense gratification. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupah Kada Mahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Sri Guru Sri Utapadakamalam Sri Gurun Vaishnavasya Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitanscha Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Vancha Kalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. हरे कृष्णा. तो यह श्रीमद् भागवतम का बहुत ही सुंदर और बहुत ही विशेष जो है श्लोक है. निवृत्त तरशैर उपगीयमानात् भवत् औषधा श्रोत्र मनोभिरामात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमां विरज्येत पशु बिना पशुपनात्. इसमें महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से जिज्ञासा कर रहे हैं कि आप मुझे भगवान की लीलाओं को विस्तार से सुनाइए. और विस्तार से सुनाने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो भगवान की कथा है वह जो है वह मुक्त पुरुषों के द्वारा जो मुक्त व्यक्ति हैं वो भगवान की कथा को सुनते हैं.
और यहाँ कृष्ण कथा के स्वभाव को, कृष्ण कथा के गुण को महाराज परीक्षित बता रहे हैं कि निवृत्त तरशैर उपगीय मानात। यह कथा जो है, इसको श्रवण करने वाले जो लोग होते हैं वो निवृत्त तरशैर, तरशैर का अर्थ होता है इंद्रिय तृप्ति। तरशैर शब्द जो है वो तृष्णा से आई है, जैसे हम सुनते हैं मृग तृष्णा। तो तरशैर किसी चीज को, अभौतिक सुखों को अपनी इंद्रियों के माध्यम से या अपने मन के माध्यम से अपने अहंकार को तुष्ट करने की जो चेष्टा है वो तरशैर है। परंतु जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उन्हें निवृत्त तरशैर कहा गया है। तो भगवान की जो कथा है उसे निवृत्त तरशैर उपगीय मानात। उपगीय मानात अर्थात इससे परंपरा में इसका गुणगान होता है। उपगीय, इसका गुणगान जो है, भगवान के कथा का जो गुणगान है वो परंपरा में शुद्ध भक्तों के द्वारा किया जाता है। और ये शुद्ध भक्त जो है वो निवृत्त तरशैर होते हैं। उन्हें भौतिक कामना की या अपने भौतिक अभिलाषाओं की प्रतिपूर्ति के लिए कोई भी चेष्टा नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें कोई अभिलाषा नहीं होती है अपनी इंद्रियों को तृप्त करने का। वो भगवान के सेवा में निरंतर संलग्न रहते हैं और इस प्रकार से वो परम संतोष का अनुभव करते हैं, परम सुख का अनुभव करते हैं। और यहाँ श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि जब कृष्ण कथा इतनी सुंदर है, कृष्ण कथा इतनी मन को भाने वाली है कि व्यक्ति जब श्रवण करता है तो वह जो है वह निवृत्त तरशैर हो जाता है। मनोभिरामत का उत्तम श्लोक गुणानुवादात। यह जो कृष्ण कथा जो है, यह जब इसे निवृत्त तरशैर जो है उसे गाते हैं तो इसको मन को बहुत प्रसन्न करने वाला है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, जब कृष्ण की कथा को श्रवण करना इतना मन के लिए सुमधुर है, मन को भाने वाला है, तो हम कृष्ण की जो सेवा करेंगे, भगवान की व्यक्तिगत सेवा में जब नियुक्त होंगे तो वह कितना मन को भाने वाला होगा, उसमें कितना आनंद होगा। तो यह कृष्ण भावना के स्वभाव को यहाँ बताया जा रहा है कि कृष्ण भावना जो है यह इसे अभ्यास किया जाता है निवृत्त तरशैर लोगों के, भक्तों के द्वारा, जो बद्ध जीवों को निवृत्त तरशैर होने के लिए ज्ञान देते हैं। और यह जो कृष्ण कथा है इसे परंपरा में उपगीय मानत, इसे परंपरा में दोहराया जाता है, परंपरा में गाया जाता है। और यह कथा जो है, जो कृष्ण कथा है वह इतना सुमधुर है, इतना मन को आनंद देने वाला है, मन और इंद्रियों को आनंद देने वाला है कि व्यक्ति इसको ग्रहण करने के बाद और उसे किसी भी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति की कामना नहीं रह जाती है। या यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम कतः अस्मिन् स्तोत्र दुखे न गुरु नापि विचाले। और उसकी भौतिक परिस्थिति कैसी भी हो, वह अपने भौतिक परिस्थिति से विचलित नहीं होता है, परंतु वह निरंतर भगवान की सेवा में संलग्न रहता है। वह जानता है कि इससे ऊंचा प्राप्त करने के लिए और संसार में कुछ भी नहीं है। तो हम इसे प्रैक्टिकली भी देखते हैं कि जो भक्तगण हैं, जो साधक भक्त हैं, साधना की अवस्था में है, हम वैधि मार्ग का, भक्ति का अनुपालन कर रहे हैं। तो वैधि मार्ग का अनुपालन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम पूरी तरह से निवृत्त तरशैर नहीं है, हम भगवान के शुद्ध भक्ति के स्तर पर नहीं है। परंतु एक साधना के स्तर पर भी जब हम भगवान को स्वीकार करते हैं, जब हम भगवान को समर्पण करने का चेष्टा करते हैं, तब भी हमारे इंद्रियों और हमारे मन को भगवान की कथा में, भगवान की सेवा में आनंद प्राप्त होता है। प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि जो भक्तगण हैं उनका मन, उनका चित्त प्रसन्न रहता है क्योंकि उनके हृदय में कृष्ण निवास करते हैं। उनका जो जीवन है वो कृष्णमय होता है, वो कृष्ण से भरा होता है। इसलिए हम भक्तों को कभी भी मायूसी की स्थिति में नहीं पाते हैं। कभी हो सकता है कि किसी कारणवश भक्त को कभी कोई उदास हो, कभी भक्त के मन में कभी ग्लानि आती है,
परंतु भक्त का चित्त जो होता है वो हमेशा प्रसन्न रहता है। और इससे प्रैक्टिकली हम देखेंगे, जो भक्तगण हैं, हम रास्ते में मिलते हैं भक्तों को, कितने सुंदर स्माइल देते हैं। और भक्तगण जो है उनका जो मुखमंडल होता है वो कितना प्रकाश से तेज रहता है उनके मुखमंडल पर, क्योंकि उनके हृदय में कृष्ण निवास करते हैं और वो निरंतर कृष्ण को स्मरण करने का, कृष्ण को सेवा करने का, कृष्ण को समर्पण करने का चेष्टा कर रहे हैं। तो यह जीवन की सिद्धि है और इसे प्राप्त करना वही जीवन की सिद्धि है। इसे यहाँ परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पुमान विरजेत पशु बिना पशु ज्ञान, कौन व्यक्ति इस कृष्ण कथा को त्यागेगा। तो वैसा व्यक्ति कृष्ण कथा को त्यागेगा जिस व्यक्ति जो व्यक्ति जो है वह पशुज्ञात है। पशुज्ञात का अर्थ होता है कि पशु को मारने वाला, और इसका अर्थ ये भी है जो स्वयं को मारने वाला है। तो यदि कोई व्यक्ति कृष्ण कथा में रुचि नहीं लेता है, कृष्ण भावना में रुचि नहीं लेता है, तो पुमान विरजेत बिना पशुज्ञान, जो कृष्ण को त्याग देता है, जो कृष्ण भावना को त्याग देता है, स्वीकार नहीं करता अपने जीवन में, तो वह व्यक्ति जो है वो पशुघ्न है। घ्न का अर्थ था मारने वाला, पशुओं को मारने वाला। तो जब जीव के हृदय में दया नहीं होती है, वो पशुओं को मारता है, तो उसका हृदय कठोर हो जाता है और भगवान की भक्ति जो है वो उसके हृदय में स्थान नहीं लेती है। तो कौन से व्यक्ति ये पशुघ्न है, इसको श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं। और वो नरोत्तम दास ठाकुर का उनका जो भजन है विषय छाड़िया कबे, उसका उदाहरण देते हैं। मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो। तो मनुष्य जन्म मिला और मनुष्य जन्म मिलने के उपरांत हमने जब राधा कृष्ण को नहीं भजा, कृष्ण भावनामृत को स्वीकार नहीं किया, तो जानिया सुनिया विष खाइनो, यह जो है जानबूझ के विष खाने के समान है, विष ग्रहण करने के समान है। तो वस्तुतः जो इंद्रिय तृप्ति है यह विष के समान है। भगवत गीता में भगवान 18वें अध्याय में बोलते हैं कि जो शुरू में अमृत के तुल्य प्रतीत होता है वह वास्तव में वह बाद में विष हो जाता है, और जो शुरू में विष के समान प्रतीत होता है वह बाद में अमृतमय हो जाता है। तो जो इंद्रिय तृप्ति है और भगवान की साधना भक्ति है, इसमें इसके जो है यह जो है बिल्कुल ऑपोजिट है। इंद्रिय तृप्ति शुरू में जीव को अमृत के समान लगता है, इसलिए जीव जो है इंद्रिय तृप्ति से आसक्त रहता है और निरंतर इंद्रिय भोग की कामना करता है, उसके लिए चेष्टा करता है, और इस प्रकार उसका पूरा जीवन इंद्रिय भोग में व्यतीत हो जाता है और व्यर्थ हो जाता है उसका मनुष्य जीवन। और जीवन के अंत में जो है उसे अधोगति की प्राप्ति होती है। जिस हेतु के लिए उसे मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ था उसका मनुष्य जन्म विफल हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति धर्म अर्थ काम के लिए सिर्फ धर्म अर्थ काम करे तो वह भी जीवन की विफलता है, यदि वो भगवान के भक्ति को ना ग्रहण करे। यहाँ श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि जो व्यक्ति धर्म अर्थ और काम में सिर्फ निमग्न रहते हैं उसे उसका जीवन भी जो है वो निरर्थक है। धर्म सुनश्चित पुंसाम विश्वक्षीण कथा सुय नोत्पाद यद यति रतिम श्रम एव ही केवलम। तो भागवतम में अन्यत्र दूसरे अध्याय में कहा गया है कि कोई व्यक्ति यदि धर्म का भी कार्य करता है और उसे भगवान की कथा में रुचि नहीं होती है, कृष्ण कथा में रुचि वो उत्पन्न नहीं करता है, तो वह जो है श्रम एव ही केवलम है, वो व्यर्थ का श्रम है। तो जीव जो है वो व्यर्थ का श्रम कर रहे हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए, और इंद्रिय तृप्ति जीव को कभी भी संतुष्ट नहीं करती है, कभी भी संतुष्ट नहीं करती है। इसके अनेकानेक उदाहरण शास्त्र में दिए गए हैं। एक उदाहरण ऊंट का दिया गया है कि ऊंट जो है वह मरुस्थल में कंटीले झाड़ियों को खाता है। वहाँ तो सुंदर सुंदर सॉफ्ट जो कोमल घास ऊंट को प्राप्त नहीं होते हैं, वहाँ तो कटीली झाड़ियाँ मिलती है मरुभूमि में। तो वो कटीली झाड़ियों को खाता है और उसका जीवा जो है उसके कांटों से रक्त रंजित हो जाता है, और उसके जीवा से रक्त रंजित जीवा जो है उससे रक्त निकलता है,
और कांटे जो हैं और जो झाड़ियां हैं उस रक्त से मिलकर थोड़ी सॉफ्ट हो जाती हैं और ऊंट उसका आनंद लेता है। तो ऊंट उन झाड़ियों को खाकर आनंद ले रहा है, परंतु यह नहीं जानता है कि वह अपने ही रक्त का को पान कर रहा है। तो इस प्रकार ये इंद्रिय तृप्ति है। इंद्रिय तृप्ति जो है कभी भी जीव को संतुष्ट नहीं करती है। जितना वो इंद्रिय तृप्ति करने का प्रयत्न करता है, वो इंद्रिय तृप्ति की जो आकांक्षा है उतनी ही तीव्र हो जाती है, उतना ही बढ़ जाती है। और इस प्रकार वो हमेशा यह योजना करता रहता है कि मैं ऐसा कार्य करूंगा, मैं ऐसा कार्य करूंगा, मैं यहाँ से धन कमाऊंगा, यह व्यवस्था करूंगा, ऐसी व्यवस्था करूंगा। और इस प्रकार ऐसी व्यवस्था करने में उसका पूरा मनुष्य जीवन जो है वो बीत जाता है, वो व्यर्थ हो जाता है। और इस प्रकार उसे जीवन में कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। यम शास्त्र विधि में उत्सृज्य वर्तते कामकारः न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। तो यहाँ तो बताया जा रहा है धर्म, जो यदि कोई व्यक्ति धर्म के अनुकूल कार्य कर रहा हो, सिर्फ धर्म अर्थ और काम के लिए, तो उसको व्यर्थ बताया जा रहा है। और आज की समाज में, आज के समय में हम देखते हैं कि लोग धर्म का पालन भी नहीं करते हैं। लोग धर्म को त्याग कर इंद्रिय तृप्ति करने का प्रयत्न करते हैं। जैसे शास्त्र में चूंकि बद्ध जीव इंद्रिय आसक्त है, उसमें इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है, इसलिए शास्त्र में धर्म बताया गया है कि हम इंद्रिय तृप्ति भी धर्मानुसार करें। यदि हम धर्म के अनुसार इंद्रिय तृप्ति करेंगे तो हमें उस प्रकार का पाप नहीं लगेगा। हम संसार के जो बहुत ही घृणित पाप है उसमें नहीं फंसेंगे। और साथ ही साथ यदि हम धर्म का कार्य करेंगे तो धीरे धीरे हमारी उन्नति होगी। हम तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण की तरफ हम अग्रसित होंगे। परंतु आज के समाज में जो लोग हैं उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, अपने धर्म को ही त्याग दिया है। और धर्म को त्याग कर वो सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के पीछे वो लगे हुए हैं। आज की जो सभ्यता है, आज का जो समाज है, आज का जो शिक्षा पद्धति है, वह भी धर्म को त्याग कर एकमात्र इंद्रिय तृप्ति को केंद्र बनाकर चलती है। हम देखते हैं आजकल विद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में शास्त्र के बारे में, धर्म के बारे में, धर्म के ज्ञान के बारे में शिक्षा नहीं दी जाती है। धर्म क्या है उसको नहीं बताया जाता है। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ सिर्फ यही बताया जाता है कि हम प्रकृति का शोषण कैसे कर सकते हैं, ज़्यादा धन कैसे कमा सकते हैं और इंद्रिय तृप्ति कैसे कर सकते हैं। और इस प्रकार मानव जीवन जो है वो व्यर्थ हो जाता है और मानव जीवन नाना प्रकार के कष्टों में हमेशा निहित रहता है, नाना प्रकार के कष्ट को झेलता रहता है। और इस प्रकार का मनोभावना उसकी रहती है कि आगे कभी सुखी हो जाऊंगा, आगे सुखी हो जाऊंगा, और वो कभी भी वास्तविक सुख को प्राप्त नहीं करता है। और दूसरी तरफ जो साधक भक्त है वह जब साधना को ग्रहण करता है तो शुरू में साधना जो है वह तपस्या है। साधना का अर्थ है तपस्या, क्योंकि जो ब्राह्मण होते हैं उनका जो धन होता है वह तपस्या होती है। और भक्ति जो है वास्तव में तपस्या का मार्ग है। यदि हम तपस्या नहीं करेंगे तो हम भक्ति नहीं कर रहे हैं। भक्ति में तपस्या, श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि आप 16 माला जप कीजिए, 4 नियम को पालन कीजिए। तो क्योंकि धर्म जो है इन 4 स्तंभों के ऊपर स्थित रहता है, तो धर्म का पालन करना ये तपस्या है। साधना भक्ति को स्वीकार करना, अपने जीवन में उसको व्यवहार में लाना, उसका पालन करना, ये तपस्या है। लेकिन यह तप जो है, यह तप दिव्य तप है। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेद यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तुरंतम। यह तपस्या जो है वह परम सुख और परम आनंद को प्रदान करने वाली है। तो जो यह तपस्या है वह जीव को आरंभ में वह विषतुल्य लगता है। हालांकि भक्ति का जो मार्ग है जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया है वह केवल आनंद कांड है, उसमें सिर्फ आनंद ही आनंद है। परंतु हमारी अवस्था जो है वह बद्ध अवस्था है, इसलिए जो भी कि भक्ति का मार्ग आनंद का है, फिर भी हमारे बद्ध अवस्था के कारण कृष्ण भावना को पूरी तरह से ग्रहण करना ये कभी कभी विष के समान प्रतीत होता है। जैसे सुबह उठना, सुबह उठकर जप करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना, जप करना, यह जो है एक तपस्या है। परंतु भक्त जो है उसको सहर्ष अपने हृदय के साथ सहृदय इस तपस्या को स्वीकार करते हैं और यह तपस्या जो है वो सुख का कारण बनता है।
ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, यह भगवान के जो भगवान की भक्ति है उसको प्रदान करता है। और भगवान की भक्ति जो है उसमें समस्त सुख है, क्योंकि भगवान जो है वो सच्चिदानंद विग्रह है, वो आनंद के विग्रह हैं। और जब इस प्रकार भक्त जो है वह माया को छोड़कर जब भगवान के समीप आता रहता है तो उसे निरंतर सुख का आभास होता है, उसका जीवन जो है कृष्ण भावना भावित होता है, और इस प्रकार वह संसार के ताप से, संसार के विषाद से वो विमुक्त हो जाता है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते हैं उनका जीवन जो है वह पशुघ्न है और उनका जीवन जो है वो व्यर्थ है। तो वास्तव में भगवान की भक्ति का अभ्यास ना करके यदि कोई व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में अपना जीवन लगा दे तो उसका जीवन जो है वो निरर्थक है। वह सांसारिक रूप से कुछ भी प्राप्त कर ले। जैसे यहाँ हम देखते हैं कि लोग जो है सक्सेस का, सफलता का उदाहरण देते हैं कि यदि किसी को बहुत पैसे वाला जॉब मिल गया तो वो जीवन जो है उसका जीवन सफल हो गया। ऐसे विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है कि आप बड़े होकर ये नौकरी करना, इसमें इतना पैसा मिलेगा, इसमें इतना पैसा मिलेगा। और साधारणतः लोग भी जो है बातें करते रहते हैं कि पैसे को यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ इन्वेस्ट करो, यहाँ इन्वेस्ट करो, ये खरीदो, वो खरीदो, इस प्रकार से कार्य करो, इस प्रकार से व्यवसाय करो। तो यह जो है इस प्रकार, और पैसा क्यों कमाना चाहते हैं, धन क्यों कमाना चाहते हैं? क्योंकि धन से वो इंद्रिय तृप्ति कर सकें। परंतु जो वास्तविक धन है वो कृष्ण भावना भावित है, वो कृष्ण भावना है। और व्यक्ति को धन जो है उसके प्रारब्ध के अनुसार मिलता है। एक गृहस्थ भक्त को चाहिए कि वो धन अर्जन करे, और जो धर्म अर्जन करे वो धर्म का मार्ग, वो धन अर्जन जो है वो धर्म के ऊपर निर्भर होना चाहिए। और जिस जीव को जितना उसका प्रारब्ध है उसके अनुसार से उसका धन उतना उसको प्राप्त होता है। और उस धन का उपयोग हमें कृष्ण भावनामृत में करना चाहिए। यदि हम कृष्ण भावनामृत में उस धन का उपयोग नहीं करेंगे तो हमारा जीवन जो है वो व्यर्थ हो जाएगा। जीवन जो है, इंद्रिय तृप्ति का जीवन जो है वह जीवन जो है वो व्यर्थ जीवन है। हम देखते हैं कि कृष्ण भावनामृत के अभाव में लोगों का जीवन जो है उसमें शून्यता होती है, और उस शून्यता को वो अपने पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा से वो भरना चाहते हैं। अब वो सोचते हैं कि यदि मुझे धन मिल जाएगा तो लोग मुझे आदर करेंगे, मैं बड़ा मकान बनाऊंगा, लोग उस बड़ा मकान को देखेंगे, और मैं बड़ी कार खरीदूंगा और उस कार को लोग देखेंगे, और इस प्रकार से मेरी प्रतिष्ठा होगी, मेरे समाज में प्रतिष्ठा होगी, मेरे अपने परिवार में प्रतिष्ठा होगी, मेरे रिश्तेदारों में मेरी प्रतिष्ठा होगी। और इस प्रकार से जीव जो है नाना प्रकार के जो भ्रम है उसे वो उत्पन्न करता है। और संसार में भी जो झूठी प्रतिष्ठा है इसके ऊपर पूरा आधुनिक समाज जो है वो टिका हुआ है। हमें शिक्षा, विद्यालयों में और जो चीज़ों में बताया जाता है, जैसे जितने भी कंपनी के प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे हम कोई उदाहरण के तौर पर लेंगे कि जैसे कारें हैं, तो कारें जो हैं वो 4 लाख में भी आती है, 10 लाख में भी आती है, 20 लाख में भी आती है, 1 करोड़ में भी आता है, और 4 करोड़, 5 करोड़, पता नहीं कितने में आता है। तो है वो वाहन का उपयोग है एक जगह से दूसरे स्थान तक जाने के लिए, परंतु उस मिथ्या अहंकार जो है वो उसे इस प्रकार से प्रस्तुत करती है कि आप ये ग्रहण करोगे तो इससे इतना लाभ होगा, ये ग्रहण करोगे तो इससे इतना लाभ होगा। और उस लाभ के चक्कर में जीव जो है अपना जीवन को, वो पूरा जीवन जो है वो इंद्रिय तृप्ति में वो बिता देता है। तो व्यक्ति जो है इस प्रकार का लाभ प्राप्त करके कभी भी सुखी नहीं हो सकता है, क्योंकि जीवात्मा जो है वह जो है जीवात्मा वो भगवान का अंश है, और कृष्ण के साथ रहकर, कृष्ण के साथ अपने संबंध को व्याप्त करके ही वास्तव में, वास्तविकता में वह सुखी हो सकता है। तो यहाँ संसार में जो लोग हैं वो अपने जीवन के जो वैक्यूम है, जीवन का जो खालीपन है, उसको अपने पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा से भरने का प्रयास करते हैं। वो सोचते हैं कि मैं ऐसा कार्य करूंगा जिससे मेरे समाज में मेरा नाम होगा, मुझे ज़्यादा धन मिलेगा, और इस प्रकार जो है वो अपने जीवन को त्याग देते हैं। और जो व्यक्ति इस जो भक्तगण हैं जो इस इंद्रिय तृप्ति को से दूर रहकर चेष्टा करते हैं, भगवान की भक्ति करने का अभ्यास करते हैं,
वास्तव में वो अपने जीवन में सफल हो पाते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगय गच्छन्ति अमूढ़ा परम अव्ययम तत्। तो जो भगवान का भक्त है वह इस द्वंद्व को, सुख और दुख जो है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा संसार का इंद्रिय तृप्ति, वो उसे सब कुछ त्याग देता है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म विद्या विधिवित्त कामा, वो समस्त प्रकार के इंद्रिय भोग इंद्रिय कामों को त्यागने का अभ्यास करता है, वो त्याग देता है। और इस प्रकार से जब व्यक्ति जो साधक भक्त है वह धीरे धीरे शनय शनय गच्छन्ति अमूढ़ा परम अव्ययमतः, वह व्यक्ति जो है भगवान कहते हैं कि वो व्यक्ति जो है अमूढ़ा, वह व्यक्ति जो है मूढ़ नहीं है, वह व्यक्ति बहुत ही ज्ञानी है, वह व्यक्ति में विवेक है, वास्तव में उसमें विवेक है, वो ज्ञान है। और उस प्रकार का व्यक्ति जो भक्त है वह भगवान के गच्छन्ति अमूढ़ा परम अव्ययमतः, भगवान के परम धाम को वो प्रवेश करने का अधिकारी बनता है, वो भगवान के परम धाम में प्रवेश करता है। तो यहाँ बहुत सुंदर तरीके से महाराज परीक्षित कृष्ण कथा को गुणगान कर रहे हैं और सुखदेव महाराज से, सुखदेव गोस्वामी से आग्रह कर रहे, निवेदन कर रहे हैं कि आप कृष्ण कथा को विस्तार से सुनाइए, क्योंकि यह कृष्ण कथा जो है यह जो है वह निवृत्त तरशैर उपगीयमाना भव औषधि छात्र मनोभिरामा। यह कथा जो है इसे निवृत्त तरशैर भक्त जो है गाते हैं और निवृत्त तरशैर उपगीयमाना भव औषधा क्षौत्र मनोभिरामा। यह जो कथा है यह भव औषधि है, भव रोग को दूर करने वाला है। तो इसके बारे में भी श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता में शास्त्रों में विभिन्न जगहों पर इसका वर्णन हुआ है कि किस प्रकार कृष्ण कथा जो है हमारे भव रोग को दूर करने वाला है। और यहाँ शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि कृष्ण कथा का अर्थ है श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता से श्रवण करना और उसको कीर्तन करना। श्रीमद् भागवतम जो कृष्ण के विषय में बताया गया है, कृष्ण के भक्तों के विषय में बताया गया है, और भगवद गीता जो भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से जिस ज्ञान को बता रहे हैं। तो यह कृष्ण कथा जो है यह भव रोग को दूर करने वाला है। भव रोग क्या है? तो भव जो है, भव इस संसार को कहते हैं जहाँ पर कि जीव को जन्म और मृत्यु का चक्र प्राप्त होता है। वो जितना भी मेहनत करता है, कार्य करता है, उसका प्रतिफल, उसका जो प्रतिफल है वह है जन्म मृत्यु का चक्र। तो यह जो भव रोग है, जो जन्म मृत्यु के चक्र में जो जीव फंसा हुआ है, वो उसका वास्तविक रोग है। और कृष्ण कथा जो है वो उसके लिए औषधि है। जब हम कृष्ण कथा को ग्रहण करते हैं, कृष्ण कथा का श्रवण करते हैं, तो तब कथामृतम तप्त जीवनम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। यह जो है कृष्ण कथा जो है तब कथामृतम तप्त जीवनम, यह कथा जो है ये जो संसार में जो भव रोग में जो लोग तप रहे हैं उनके लिए अमृत के समान है। और इसे ग्रहण करने से जीव जो है वो निरंतर जो है भगवान के धाम की तरफ अग्रसित होता है और उसका भव रोग जो है धीरे 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 वो मिट जाता है। तो कृष्ण कथा जो है वह शुद्ध भक्तों के द्वारा गाया जाता है, इसे परंपरा में स्वीकार किया जाता है। और यह जो है यह भव रोग को, संसार के जन्म मृत्यु के चक्र को मिटाने वाला है, संसार के जो तीन ताप है उसको मिटाने वाला है। और का उत्तम श्लोक गुणानुवादात, ये जो उत्तम भगवान को उत्तम श्लोक कहा गया है क्योंकि भगवान का जो गुणगान है वह विशिष्ट, जो संसार के सबसे अच्छे जो छंद हैं उसमें रचना है, उससे भगवान का गुणगान होता है और उसे भक्तगण जो है परंपरा में उसे स्वीकार करते हैं। और एक व्यक्ति जो है जो जो उसे त्याग देता है, जो उसे ग्रहण नहीं करता है, जिसमें उसकी रुचि उत्पन्न नहीं होती है, वो व्यक्ति जो है वह पशुग्न है, एक प्रकार से स्वयं को वो मारने वाला है। तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित अनुग्रह कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण श्लोक को यहाँ बता रहे हैं। तो हमने इसे सुना और आगे इसी प्रकार से कुछ श्लोकों में महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को और संबोधित करते हुए और आगे उनको बताएंगे
जिसे हम दूसरे क्लास में लेंगे। तो यहाँ पर मैं विराम देता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।